I was the only female who used to sit with all the HODs on the table. I was the only female there in the leadership role. So ये dilemma तो हमारी industries में exist करता है. तो now organization are trying to fill that gap जो पहले से चला रहा है. This is not something new. और जाहिर डेफिनेटली फिर उनके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस हैं और उनके ऊपर रेगुलेशंस हैं जो कि बाहर से आई हैं. स्टेट बैंक के कुछ रूल्स हैं. तो डेफिनेटली पाकिस्तान को अगर रैंकिंग अपनी इम्प्रूव करनी है, जो वीज़ास के हमारे इश्यूज होते हैं, पासपोर्ट के जो इश्यूज हैं, तो उसमें उनको जो हमारे एजेंडाज हैं, फॉरेन जो हमारी एजेंसीज हैं, उनके साथ मिलके काम करना पड़ेगा. Assalamualaikum HR Pakistan. This is Ubaid from the Recruiters. Hope you guys are doing well. बहुत दिनों बाद जो है फिर से हम जो है ऑन कैमरा पॉडकास्ट कर रहे हैं. इस दौरान जो है आप मेरी तमाम पॉडकास्ट लिंक्डइन लाइव पर देख सकते हैं. आज हमारे साथ वही बे इंतहा फिनोमिनल गेस्ट मौजूद है. बाय क्वालिफिकेशन शी इज अ फूड साइंटिस्ट. और बहुत सारे प्रोफेशनल्स ऐसे हैं हमारे मुल्क के अंदर जिनकी क्वालिफिकेशन कुछ और है, लेकिन उन्होंने दूसरे डिसिप्लिन्स के अंदर, दूसरी प्रोफेशनल अरीना के अंदर अपने लैंडमार्क प्रोजेक्ट से कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं. और आज हमारे साथ इसी तरह की प्रोफेशनल मौजूद हैं. हर नेम इज सबा हसन. शी हैज डन MSc फूड साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची. प्रीवियसली वर्क फॉर लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इफ्को, आदमजी इंश्योरेंस, Primatics Financials, Mazik Global, Agha Steel Industries, Mustaqim Dyeing, and currently working as Head of Digital Transformation at Ajcos. Assalamu alaikum, Sabah. Walaikum assalam, Ubaid. How are you? I'm doing great. Thank you so much for joining my podcast. I'm really humbled and excited to have you. Thank you so much for having me here. So let's start, Sabah. Can you walk us through your career journey in HR and your major milestones? Well, as you have already given so much introduction about me, but in order to make it concluded, I would just say that my career spans over like 2 decades of HR professional, and I have worked across multiple industries, whether it be manufacturing, whether it be global consulting or IT, insurance, so you name it, and I have worked there. So, and I'm a professional of which I have transformed my career from the transactional side. How this transition happens, by the way? एक food scientist जो recipes और सारी चीजें design करता है, heading the HR functions of various organizations. How it's happened? Well, देखें, एक तो फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो बैक ऑफ द स्टेज काम कर रहा होता है और ऑन एंड फ्रंट भी काम कर रहा होता है एट डिफरेंट फ्रंट्स की, जिसमें प्रोडक्शन लाइंस होती हैं, उसमें फूड टेक्नोलॉजिस्ट काम कर रहे होते हैं. जो QA labs होती हैं, we work there as well, biochemistry. So we, learn the all the ins and outs of a food, whether it be any commodity, whether it be beverages, confectionery, and so on and so forth. So it was very interesting field. So I left my civil engineering from NAD University, and I, took admission in food technology because it was quite an evolving field, emerging field, and I took my gold medal in that because I had so much interest in the biochemistry, chemistry, maths, physiology of food, actually, microbiology. And after passing the exam, what I found that the market is not very much progressive for females here, especially in that field. We didn't have much scope. So the scope that we had already in QA, and I wanted to come out of that QA part. I wanted to bring some creativity and innovation in the field, and wanted to do some research work related to field. R&D के अंदर नहीं था. हाँ, R&D में नहीं था. R&D में अगर था तो सिर्फ जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आप HEJ चले जाएं या आप और किसी इंस्टीट्यूट चले जाएं, या HEJ में आप अपने कुछ पेटेंट्स वगैरह कर लें, वहां से MPhil कर लें, विच वाज वेरी नॉर्मल, जो कि टीचर्स की एक फील्ड हम कहते हैं, सपोज करते हैं. प्रोफेशनल्स के लिए R&D में उस वक्त कुछ नहीं था. अब तो खैर सिचुएशन काफी डिफरेंट है. एंड आई वांटेड टू डू समथिंग, एज आई टोल्ड यू, कि भाई कुछ क्रिएटिविटी हम लेकर आए, कुछ चीजों में हम इम्प्रूवमेंट लेकर आए. एंड बीइंग अ फीमेल, आई वांटेड टू वर्क ऑन द प्रोडक्शन लाइन, गो देयर एंड see what's happening there. उस वक्त प्रोडक्शन लाइन में फीमेल्स को जाने ही नहीं दिया जाता था. Women were working only in the QA and all, if I talk about the food technology. वहां से फिर मेरा एक थोड़ा सा स्टार्ट हुआ. Then I worked for Capola as in like quality auditor for 2 years. वहां भी मैंने देखा कि वहां भी बड़ा लिमिटेड स्कोप है. तो जहाँ R&D के लिए भी, जब विमेन जो R&D में वहां भी काम कर रही थी, उनको भी जब अब्रॉड स्टडी के लिए भेजा जा रहा था या इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रैवल करवाया जाता था, तो उनके लिए भी वो मेल्स को ही सिलेक्ट करते थे.
बिकॉज वो सोचते थे कि शायद उनके अंदर कोई वो पोटेंशियल को कैपिटलाइज करने की अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही थी फॉर इवन इन द रीजनल मल्टीनेशनल्स लाइक कपोला एंड लाइक इफ्को. सो वहां से जी आई थॉट कि मैं कोई ऐसी फील्ड सिलेक्ट करूं कि जो मेरा जो पैशन है ऑफ लर्निंग, कंटिन्यूअस लर्निंग का एक जो क्राइटेरिया है, जो एक इंटरपर्सनल स्किल्स है लोगों से बात करने का और कुछ नया करने का, उसको मैं चाह रही थी कि मैं किसी तरह से जैसे आपने कहा कैपिटलाइज करूं. सो एचआर में मेरा इंटरेस्ट इफ्को पाकिस्तान से डेवलप हुआ, जहां मैंने एचआर के साथ बात की और वहां पे कुछ एचआर प्रोफेशनल से I talked to my management. They agreed to transfer me from business development team of their food to the HR department. Excellent, बहुत receptive team थी. Yeah, exactly. Very nice. So because उनका job rotations बहुत common होती हैं and they always take care of the emotions of an employee कि वो क्या चाहता है, the aptitude and interest. So I told them in my meeting कि जी मुझे जब job evaluations हो रही थी, I told my manager कि जी मुझे HR में कुछ करना है, I want to do pursue my career there. तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने मुझे एक चांस दिया. आई स्टार्टेड माय करियर एज इन कॉम्पेंट एग्जीक्यूटिव फ्रॉम इफ्को पाकिस्तान एंड आई स्टार्टेड कंसेक्यूटिवली आई स्टार्टेड माय एमबीए इन एचआर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, जहां पे उस वक्त वो जो सूटेबल था मेरे लिए अलोंग विद द जॉब. सो that then the journey started and from there I never looked back and I see myself as a professional कि जो के ट्रांजैक्शनल एचआर से या ऑपरेशनल एचआर से आई इवॉल्व माई सेल्फ एज इन लाइक स्ट्रेटेजिक लीडरशिप रोल. सो वहां से दैट वाज अ बिग जर्नी ऑफ ओवर 2 decades as I told you and my journey that's a blend of emotional intelligence and ethical leadership की मैं बार-बार बात कर रही हूँ. So ethical leadership is my forte and emotional intelligence. Can you please highlight your major milestone as a functional head of HR? Yes, there are so many. Okay. Because major 3 milestones which you are proud of. Okay, really? Which I am proud of. This is one thing. Passing my international certification. Okay. Shrimp SCP. That is a one major biggest achievement that I think of myself as far as the learning and continuous learning is my forte and ethical leadership. तो जो continuous learning की हम बात करते हैं तो फिर उसमें definitely I think कि मैं खुद क्या हूँ, I'm leading from the front to my juniors to my peers. If I जो लीड कर रहा है उसको अपस्किल करना बड़ा जरूरी है. Exactly. तो वो for upskilling का पार्ट अगर आप बात करें तो passing my I have also done one another international certifications like Happytalism में मैंने किया अभी from World Happiness Foundation. Yes. Now I'm going for another certification with them inshallah soon. Okay. So and the second milestone that I would say that implementing the KPI system, the balanced scorecard system in Mustaqim Mustaqim जाएंगे within a record time under 6 months across the organization. Across organization of for about 2,000 white collar employees and about 1,000 and 1,500 जो है वो हमारे blue collar employees, supervisors and in charge. So that was a record breaking time. Under 6 months I implemented that. Okay. Day and night. That was a hard, the hard work for day and night of me and my team as well. Okay. I won't leave them behind actually. Okay. And the third one was that I was a front face for the international customers like IKEA, like Walmart, Tesco. And with them, I implemented a lean project for my organization, which was again the Mustaqim Industries. Okay. Because we reduced the quality defects and we saved a lot of money for them actually in dollars. If HR is doing that, what the production guy and factory manager is doing? That was a collaborative effort actually. But I was an ambassador from Mustaqim side to all these international organizations. Oh, very nice. So you'll get the international exposure. Yes. With all the stakeholders. And this is why ILO opted me as in like the HR trainer for the ILO Score Academy Pakistan, which is the first ever private limited organization of ILO trainers. Okay, very nice. So as a functional head, रोजाना की बुनियादों पे you need to take various decisions. In your career, what is the most difficult HR decision you've ever taken? The most challenging one, they day to day आते रहते हैं आपके पास decision, and every
प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर। एचआर में ऐसा होता है कि एक प्रॉब्लम ईस्ट से आ रहा है तो एक वेस्ट से आ रहा है, और उसका सोल्यूशन भी यू नीड टू टेक आउट इन द लाइट ऑफ द पॉलिसीज। आपको अपनी जो ताकि कंप्लायंसेस रहें सारी। एग्जैक्टली आपको अपनी लीडरशिप की जितनी भी चीजें हैं उनको सामने रखते हुए, स्पेशली इथिकल लीडरशिप की मैं बार बार बात कर रही हूँ, बिकॉज आई हैव सीन दैट्स द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट इन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन वी मेक डिसीजंस। पॉलिसीज को तो हम कर लेते हैं, बट पॉलिसीज में भी क्या हम इथिकल पॉलिसीज बनाते हैं या नहीं, दैट इज वन क्वेश्चन। तो उसमें ये है कि जो मोस्ट डिफिकल्ट था आगा स्टील में, आई फेस लाइक आई रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट ऑफ प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉई। एक प्रोजेक्ट के लिए हमें प्रोजेक्ट लीड चाहिए था, तो हमने एक ऐसे एम्प्लॉय को उनके मैनेजर ने चूज किया कि जिनकी तो अपने टीम मेंबर्स के साथ ही एक तो अच्छी जेलिन नहीं है। हाँ जी बिल्कुल जेलिन नहीं था, एंड उनके अटेंडेंस के भी इश्यूज थे। ही वाज नॉट द राइट पर्सन एज फॉर एज अ कॉम्पिटेंसी मैपिंग इज कंसर्न्ड। लेकिन इमीडिएट सुपरवाइजर इज रेकमेंडिंग। यस, एंड मैनेजमेंट वाज रेडी, बिकॉज वो होता है कुछ कनेक्शंस होते हैं, कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं, रिलेशनशिप्स, लेंथ ऑफ सर्विस होती है एक्चुअली बिल्कुल कि वो इतना इतने पुराना साल एम्प्लॉय से है जी। उसको मैंने रूल आउट किया अपनी एथिकल लीडरशिप की बेसिस पे, कॉम्पिटेंसी मैपिंग करके दी, 360 फीडबैक मैनेजमेंट को करके दिखाया। रिटेलिएशन आई, बहुत ज्यादा रिटेलिएशन आई, बट जो उस वक्त डायरेक्टर थे उनको मेरी सुननी पड़ी, बिकॉज मेरे पास एविडेंसेस थी ना। आई वाज टॉकिंग ऑन एविडेंसेस बेसिस कि फ्यूचर में जाके दिस पर्सन इज नॉट द राइट वन जो आप प्रोजेक्ट करेंगे, आपका प्रोजेक्ट डुबो देगा। And ये और the person whom I had identified on the basis of 9 box grid, उस वक्त हमने potential और performance की basis पे, he became the top contributor afterwards, और मुझे I was so happy taking that decision। मैं तो छोड़ चुकी थी आगा स्टील, I worked there for only 1 year। बाद में मुझे जो पता चला कि he is still there, he's working as a project head of that particular project। very nice, excellent। तो management was also that must be happy of that decision। That was the most challenging one, I would say। Okay। In your opinion, Sabha, because mashallah you are a seasoned HR professional, what are the major talent acquisition challenges faced by HR Pakistan in the next 5 to 10 years down the line? That we will face or we are facing? We'll be facing। ये potential कौन से मुश्किलात अभी आने वाली हैं हमारे लिए? एक तो देखें जी, जिस तरह से मैंने कहा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स दे आर टेकिंग प्लेस, सो उसमें अभी भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते थे और आते रहेंगे जिसमें अगर हम अपनी पॉलिसीज को प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की बेसिस पे या कॉग्निटिव एबिलिटीज की बेसिस पे हम कैंडिडेट्स को और मेरिटोक्रेसी को अगर हम नहीं लेके आएंगे मेन स्ट्रीम में, तो उसमें जो ये डाउट्स होते हैं और जो लोगों के जो अनफेयर जो एक अनकॉन्शियस बाइसेस होते हैं हायरिंग के दौरान, वो हमेशा हमें जो है वो ओवर रूल करते रहेंगे। तो हमें उस अनकॉन्शियस बाइसेस को हटाना पड़ेगा, उसके लिए हमें ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जाना पड़ेगा, और उसमें हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को डेफिनेटली इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, जिसके अंदर हमारे एक लर्निंग प्लेटफॉर्म। सबसे पहले हम हायरिंग की अगर बात करें, तो आप हायरिंग की बात करें, सो आई विल जस्ट बी ऑन दैट ट्रैक। हायरिंग में हमारे पास जो फ्यूचर में आने वाले हैं, एक तो राइट हायरिंग, स्किल गैप्स, अगर हम स्किल्स को अप स्किलिंग नहीं करेंगे और अपनी एकेडेमियाज में उन सारे चैलेंजेस को एड्रेस नहीं करेंगे, रिडंडेंट हो जाएंगे अगर हम डेफिनेटली अगर हम इवॉल्व नहीं करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ साथ और वर्ल्ड में जो चेंजेस आ रही हैं, तो डेफिनेटली वी विल बी लेफ्ट बिहाइंड डेफिनेटली। और उसमें फिर हमारे जो हायरिंग में हमें जो चैलेंजेस, हमें राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं मिलेगा, जैसे मैंने कहा स्किल गैप्स आ जाएंगे, सबसे बड़ी तो ये चीज होगी। और सेकेंडली उसके अंदर हमेशा जो है वो कैंडिडेट भी अनसेटिस्फाइड रहेगा, नॉट फिट फॉर द राइट जॉब होगा, तो हमें उसकी परफॉर्मेंस की हमेशा जो है ना वो एक्स्ट्रा माइल जाके हमें उसको आईडीपीज हमें बनाने पड़ेंगे, पीडीपीज हमें उनके बनाने पड़ेंगे। हमेशा हम परफॉर्मेंस पे ही हम फोकस करते रहेंगे, हम उससे निकल के कोई इनोवेशन, कोई क्रिएटिविटी, कोई रीस्किलिंग ऑफ प्रोग्राम एचआर लॉन्च नहीं करता रहेगा, बस वो सिर्फ परफॉर्मेंस को ही संभालता रहेगा, जैसे बहुत सारी कंपनीज में हम स्टिल कर रहे हैं कि जब परफॉर्मेंस, एवरीवन इज फोकस्ड ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल के कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। अगर आप राइट पर्सन को राइट जगह पे आप फिट कर देते हैं, तो आप उनकी चीजों पे ट्रस्ट भी करते हैं कि अगर वो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल दे रहा है अपने एम्प्लॉइज की, तो अगर वो ऑब्जेक्टिव है, तो डेफिनेटली यू कैन इजीली गेज दैट। उसमें कम टाइम भी आपका कम से कम लैप्स होता है, क्योंकि अभी एचआर का सारा टाइम जो है वो हायरिंग में और अप्रेजल्स में ही गुजरता है, यू नो दैट। और जो हमें चैलेंजेस डेफिनेटली आ सकते हैं कि हम अगर एक्विप नहीं करेंगे, अपने आप को वेल वर्स नहीं करेंगे एआई के साथ जो कि हमारा है,
तो उसमें अगर हम ATS जो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम्स होते हैं अभी, तो यहाँ पाकिस्तान में भी वो बहुत आना शुरू हो गए हैं और सॉफ्टवेयर लोगों ने इंट्रोड्यूस करवा दिए। तो उसमें जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है, यू शुड पिक दैट, सो दैट उसमें जो स्किल्स हमें चाहिए वो हमें कैंडिडेट शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में चले, हमारा टाइम बचे और वो टाइम हम किसी प्रोडक्टिव और किसी प्रोएक्टिव अप्रोच पे और कुछ अच्छे हम जो है वैल्यू एडिंग कंट्रीब्यूटर्स के तौर पे हम जो है ना वो उसमें काम कर सकें। ठीक है, बिल्कुल सही है। आपके हिसाब से ATS कितना इफेक्टिव है एज एन HR प्रोफेशनल? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कैंडिडेट हूं, आई नो हाउ ATS वर्क्स। अपने CV के अंदर मैं वो सारे कीवर्ड्स और सारी टर्मिनोलॉजी जो है इनकॉर्पोरेट कर देता हूं, ताकि ATS सिस्टम मुझे एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए तो शॉर्टलिस्ट कर ले। एग्जैक्टली। उसमें फिर मैंने आपको तो फिर आपके फिल्ट्रेशन का तो गई ना जी वो, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा जो स्मार्ट लोग होंगे आजकल वही ये काम कर रहे हैं, तो उसमें भी फिर भी आपके पास इतना टाइम तो बच जाएगा कि सब लोग तो जाहिर है डेफिनेटली अपनी CV को उस तरह मॉडिफाई नहीं करे। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 2 वैकेंसीज, तो मेजॉरिटी आर नॉट डूइंग इट। हाँ, मेजॉरिटी इज नॉट, दे आर नॉट अवेयर एक्चुअली, उनके पास टाइम ही नहीं है उस चीज को करने के लिए। इवन यू वोंट बिलीव कि मैंने अपनी CV को अभी कुछ अर्से पहले ही उसके राइट पाथ पे उसकी तरह ATS के मेरी CV, क्योंकि हमें ये था कि अभी तो कंपनीज उसको अडॉप्ट ही नहीं कर रही हैं, दे आर नॉट अडॉप्टेबल, दे आर नॉट अडॉप्टिंग इट। लेकिन अब जब हमने देखा कि लिंक्डइन पे ये शोर आना शुरू हुआ कि पीपल कंपनीज हैव स्टार्टेड ATS, मतलब लाइक मिड लेवल मिड साइज कंपनीज ने भी जो है वो SMEs ने स्टार्ट कर दिया ATS यूज करना, तो फिर थोड़ी सी जरा सी खलबली, एक हाइप क्रिएट हुई। फिर मैंने भी जाके डेफिनेटली अपना CV अपडेट किया, मैंने कहा मैं जरा जाके देखूं व्हाट इज दिस ATS ऑल अबाउट, रिसर्च किए, सारा कुछ किया एंड देन आई अपडेटेड। मैं तो कितने लोग ऐसे करते होंगे हमारे जूनियर्स, कितने लोगों के पास इतना टाइम है इस चीज को फोकस करें। नीदर दे आर बॉदर्ड, हाँ, नीदर जरूरत महसूस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी जी, इन योर ओपिनियन हाउ AI इज ट्रांसफॉर्मिंग, AI एंड ऑटोमेशन ट्रांसफॉर्मिंग HR इन नेक्स्ट 5 to 10 years? बहुत इमेंसली। हमारी नौकरियां जाएंगी? नहीं, मैं ये कहती हूँ, देखिए ह्यूमन टच नौकरियां कुछ लोगों की ऐसी जाएंगी जिन्होंने अपने आप को, अगेन मेरी बात है, अप स्किल नहीं किया ऑपरेशनल लेवल में रखा है। हाँ, ऑपरेशनल लेवल में, जैसे कि आप पेरोल है, आप कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मैन वाला साइड है, उस तरफ की जॉब थोड़ी सी खतरा है कि रिडंडेंट हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की तो अभी भी जो लीव एंड पेरोल मैनेजमेंट में उलझे हुए पिछले 10-10 साल से वहीं बैठे हुए हैं, तो उनको रिलेशनशिप्स तो बचा लेंगी, बट उनको जो ये ऑटोमेशन है ना वो नहीं बचा पाएगी अगर कंपनी ट्रू सेंस में ऑटोमेशन पे आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मुस्तकीम इंडस्ट्रीज में और आगे स्टील में भी आई वाज अ पार्ट ऑफ द मेजर SAP इम्प्लीमेंटेशन व्हिच इज वाज द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ मैनुअल सिस्टम और द ओरेकल और पुराना एक सॉफ्टवेयर सिस्टम से एक नए सॉफ्टवेयर की तरफ जाना था। तो उसमें हमें बहुत ज्यादा मेजर चैलेंजेस हमें फेस करने पड़े, पीपल वर नॉट रेडी टू अडॉप्ट इट, और उसमें वो जानबूझ के ना गलतियां करते थे और उसको फेल करने की बहुत कोशिश करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इट हैड बीन इम्प्लीमेंटेड, ट्रेनिंग्स, उसकी सक्सेशन प्लानिंग्स, आइडेंटिफाई द सक्सेसर्स फॉर द पावर यूजर्स, वो मैंने खुद किया बीइंग द HR, बड़ी मुश्किल हुई थी, दैट वाज द हार्डेस्ट प्रोजेक्ट आई वुड से। तो बट स्टिल अगर हम नहीं करते, अगर कंपनी उस चीज के बारे में नहीं सोचती, तो 5 से 10 साल के बाद डेफिनेटली उनके पास कंपैटिटिव एज ही नहीं होता मार्केट में प्ले करने के लिए। ठीक है, HR में ऑल्दो उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, बट फ्रॉम द प्रोडक्शन साइड, फ्रॉम द क्वालिटी एंड वेयर हाउस साइड, जो भी एक मैन्युफैक्चरिंग की अपनी जो भी निटिग्रिटीज होती हैं और चैलेंजेस होते हैं, उनको एड्रेस करने के लिए दैट वाज अ नीड ऑफ द टाइम, क्योंकि कोई भी चीज सिंक नहीं कर रही होती है। बट व्हेन यू इम्प्लीमेंट दैट इंटरनेशनल सिस्टम SAP विदाउट एनी कस्टमाइजेशन और विद द लीस्ट, इट इन्वॉल्व्स अ ह्यूज कॉस्ट एज वेल, व्हाट डू यू थिंक? जी ऑफ कोर्स, एंड मैंने वही कहा तो कि फाइनेंशियल हाइजीन जरूरी है, इसके बगैर तो नहीं बन सकता। मैंने SAP की तो ऐसी तस्करा किया बिकॉज आई हैड बीन द पार्ट ऑफ दैट, बट बहुत सारी कंपनीज अभी तो छोटे प्रोजेक्ट्स की तरफ भी जा रही हैं, छोटे सॉफ्टवेयर्स की तरफ जा रही हैं, जिसमें फ्लो HCM एंड अदर सॉफ्टवेयर हाउसेस, दे आर प्लेइंग अ मेजर रोल एंड दे आर रियली गुड। मैंने डेमोंस्ट्रेशन ली है उनकी ना, मैंने सारे जो जितने भी थे, क्योंकि हम HR में इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे थे, सही है, एफ्रोटेक और सारे जो वेंडर्स हैं, जी हाँ, और HCM वो था अपना टाइम ट्रैक्स एंड ऑल, मैंने सारे डेमो लिए, क्योंकि उसमें ये था उबैद कि HR में सबसे ज्यादा कॉस्ट जो है ना वो HR में आती है आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करने की, बिकॉज हम OD में जब काम करते हैं तो सक्सेस फैक्टर की अगर आप बात करें ना SAP की, तो इस वक्त वो महंगा तरीन मॉड्यूल है SAP का। इट वर्ड्स लाइक अबाउट 2 करोड़ अबव रुपीस, 2 करोड़ का सिर्फ वो एक मॉड्यूल है HR का। तो डेफिनेटली मैनेजमेंट भी सोचती है कि HR अभी इतना हमारा मैच्योर नहीं है कि वो इसको हैंडल कर सके और इतनी कॉस्ट की जाए HR के ऊपर। तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जिनकी फाइनेंशियल हाइजीन और वेलबींग अच्छी है, वो भी ये सोचते हैं
कि एचआर के ऊपर हम इतना इन्वेस्ट क्यों करें, एचआर जिस तरह काम कर रहे हैं उनको इसी तरह चलाने पुराने वाले सही भी चलते रहे चलता रहे। बिल्कुल ठीक लेकिन मैंने जो है वो इस पे ये इनिशिएटिव लिया था कि अगर आप हमें एसएपी सक्सेस फैक्टर नहीं दे रहे हैं तो आप हमें कोई भी ये लोकल वाला आप हमें दे दें। सिस्टम टाइम ट्रैक्स का चल रहा है और भी फ्लो एचसीएम पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। सो वहां पे फिर मैनेजमेंट ने उसको एग्री किया था क्योंकि उनके पास पीनट्स की कॉस्ट आ रही थी उसकी, अगर इफ यू कंपेयर इट विद एसएपी सक्सेस फैक्टर एंड एम्प्लॉय सेंट्रल से अगर आप उसको कंपेयर करें, तो उन्होंने मुझे अलाउ किया कि आप करें इसको। तो आई टुक लाइक बहुत सारी मैंने उसकी ली डेमोन्स्ट्रेशंस ली और सारा कुछ है, तो मुझे अच्छे लगे कुछ उसमें से सॉफ्टवेयर्स, बट बिफोर दैट इम्प्लीमेंटेशन इन एचआर इटसेल्फ आई लेफ्ट दैट कंपनी। Okay, Sabha, second last question. As an HR professional, what are the top 3 strategies you recommend to retain the talent actually? There are so many. If we talk about the words, so by lips अगर sync की बात करें तो we have so many strategies, but जो implementable हैं वो हमारे कल्चर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। तो अगर आप ग्लोबल प्रैक्टिसेस की बात करें सो दे हैव सेपरेट रिटेंशन स्ट्रेटजीज, और अगर आप लोकल प्रैक्टिसेस की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट होती हैं। तो मैं ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं, ग्लोबल और लोकल को हम मिला के कि जो भी कंपनीज है रीजनल, मल्टीनेशनल और लोकल कॉर्पोरेट्स जिनका सबसे बड़ा चंक है इस वक्त पाकिस्तान में, सो वो उनके लिए इम्प्लीमेंटेबल हों। तो उसमें जो रिटेंशन स्ट्रेटजीज देखें, कल्चर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इज द मेन थिंग इज अ कल्चर व्हिच ड्राइव्स फ्रॉम द टॉप। That's the top to bottom approach. That never comes from the bottom to up approach. तो I would say कि leadership की जो buy-in है, जो commitment है, is very important. और उसके साथ साथ HR की जो उनके साथ hand joining, hand holding, collaboration वो बहुत important. They should provide the credibility to the HR. जो HR के लोग कर रहे हैं उनको उन actions के ऊपर, actionable items के ऊपर जो है वो management का buy-in और commitment बहुत important है। क्योंकि होता ये है कि जब आप टाउन हॉल्स में जाते हैं तो सबसे ज्यादा एचआर को उस वक्त ट्रोल किया जाता है और एचआर को उस वक्त मैनेजमेंट की बाइन और आपके साथ अगर होगी ना तो उसमें ये सारी चीजें नहीं होंगी। क्योंकि मैंने वहां पे कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स दिए। अच्छा, दूसरा रिटेंशन का मैं आ जाती हूँ क्योंकि बहुत फिर लंबा हो जाएगा, तो मैं दूसरी तरफ आ जाती हूँ कि दूसरा क्या टिप हो सकती है। दूसरी टिप है कि फेयरनेस और एक्विटी और इंक्लूजन के साथ आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। दैट्स नॉट, लेकिन हमारे जो एचआर वाले हैं, माजरत के साथ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमने DEI को सिर्फ एज से, जेंडर से रेस्ट्रिक्ट क्यों कर दिया? एग्जैक्टली, मैं उसी पे आ रही हूँ कि ये बज़वर्ड बन गया है। DNI इज अ बज़वर्ड, एवरीबॉडी इज यूजिंग इट। एज अ रिक्रूटिंग कंसल्टेंट देयर आर लॉट ऑफ सीजन्ड HR प्रोफेशनल्स जो 6-6, 8-8 महीने से अपनी जॉब्स ढूंढ रहे हैं। कंपनीज है, पोजीशन अवेलेबल है, बट ड्यू टू DEI दे आर ओनली लुकिंग आउट फॉर फीमेल। आई एम नॉट अगेंस्ट फेमिनिज्म, मैं बिल्कुल फीमेल कैंडिडेट के अगेंस्ट में नहीं हूं, बट एज अ रिक्रूटर इट्स माय इनर बिलीफ, कोर बिलीफ, कि अगर कैंडिडेट अच्छा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, जो आपकी पोजीशन स्पेक्स को 10 on 10 मैच कर रहा है, तो डेफिनेटली उसको चांस मिलना चाहिए। बिल्कुल। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? ये भी एक पॉइंट है, लेकिन अगर हम दोबारा इंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं तो होता ही है कि पास्ट में ही हमारे पास सिवाय कुछ सेक्टर्स के जो कि स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं पाकिस्तान के, जैसे कि बैंक्स हैं, वहाँ ऑलरेडी फीमेल्स बहुत ज्यादा तादाद में काम कर रही थी। मैन्युफैक्चरिंग में एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां पे तो फीमेल पैकिंग में आपको बहुत ज्यादा मिलेंगी, फार्मा में। लेकिन था ये कि जो मेन स्ट्रीम है, जो लीडरशिप रोल्स हैं, सी सूट लेवल रोल्स हैं, उसमें फीमेल्स को कंसीडर ही नहीं किया जा रहा था। और सी सूट लेवल में ऐसा नहीं है कि आप, कुछ कंपनीज होती हैं जो हायर कर लेती हैं फ्रॉम आउटसाइड, बट व्हाट इज देयर क्राइटेरिया टू डेवलप द फीमेल्स टू कम टू दीज स्टेजेस फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल प्लेसमेंट के कुछ क्राइटेरियाज ही नहीं है, बिकॉज फीमेल्स वहां है ही नहीं, और जो आती हैं वो भी रुकती नहीं है बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस। सो कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डेफिनेटली जो स्पेशली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, उनको जो है वो यूरोपीय यूनियन की तरफ से और इनकी तरफ से एक खास परसेंटेज मिली है कि आपने इन फीमेल्स को हायर करना ही करना है। और अब ये रेगुलेटरी असाइनमेंट है, ऑब्लिगेशन है स्टेट बैंक की तरफ से बैंक्स को भी कि आपने उसमें ट्रांसजेंडर्स को भी हायर करना है, बीइंग इररिस्पेक्टिव ऑफ के सिर्फ विमेन हायर करना है, बट ट्रांसजेंडर्स और पीपल विद डिसेबिलिटीज, PWD का भी कोटा अब अनाउंस कर दिया गया है। बिल्कुल ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशंस अब उस तरह देख रही हैं कि अगर उनको जो है एक्सपोर्ट पे रहना है, स्पेशली जो टेक्सटाइल यूनिट्स हैं और जो दूसरी गारमेंट इंडस्ट्रीज हैं, तो ये कोटा पूरा करना है आपको? उनको ये कोटा पूरा करना है। उनको 30% फीमेल्स चाहिए ही चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और उसमें से भी उनको 2% लीडरशिप रोल में चाहिए। मेरी ऑर्गेनाइजेशन की, इफ यू टॉक अबाउट मुस्तकीम इंडस्ट्रीज, I was the only female who used to sit with all the HODs on the table. I was the only female there in the leadership role. So ये dilemma तो हमारी इंडस्ट्रीज में एग्जिस्ट करता है। तो now organization are trying to fill that gap जो पहले से चला रहा है,
दिस इज नॉट समथिंग न्यू। और जाहिर डेफिनेटली फिर उनके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस हैं और उनके ऊपर रेगुलेशंस हैं जो कि बाहर से आई हैं, स्टेट बैंक के कुछ रूल्स हैं। तो डेफिनेटली पाकिस्तान को अगर रैंकिंग अपनी इम्प्रूव करनी है, जो वीज़ास के हमारे इश्यूज होते हैं, पासपोर्ट के जो इश्यूज हैं, तो उसमें उनको जो हमारे एजेंडाज हैं, फॉरेन जो हमारी एजेंसीज हैं, उनके साथ मिलके काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। ऐसा लास्ट क्वेश्चन, you've done course on capitalism from World Happiness Foundation. Tips for making your organization a truly happy organization. इसमें देखिए, कैपिटलिज्म का वर्ड तो नया है, लेकिन इसके पीछे जो फिलॉसफी है वो बहुत पीछे से मतलब लाइक 1800 कुछ हैं, जो कि योगा मास्टर्स और जो हमारे गुरुज होते थे योगा के, उनसे ही ये ड्राइव की हुई एक न्यू फिलॉसफी है, जिसमें मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ वैल्यू होने का। एक एम्प्लॉय अपने आप को कैसे वैल्यूड फील करता है, कैसे इंक्लूसिव फील करता है, कैसे उस कल्चर के अंदर वो इवॉल्व होके, मिक्सअप होके उस कल्चर के साथ जो है वो जेलिन होके चलता है, और वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हैप्पी होके काम करना चाहता है इंस्टेड ऑफ सैड। Okay. तो वो जो कल्चर है ना, उसको इंट्रोड्यूस करना और उसको इनकलकेट करना और उसको इंट्रोड्यूस करना और एक एम्प्लॉय को वैल्यूड फील कराना, दैट इज कॉल्ड द हैपिटलिज्म। कि आप अपने, जब एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होता है, तो वो अपने सारे दुख दर्द भूल के वो सिर्फ अपने काम पे फोकस करे, अपने पीयर्स पे फोकस करे, अपनी चीजों पे फोकस करे, और जो है वो इथिक्स के साथ जो है ना वो अपनी जॉब ड्यूटीज परफॉर्म करे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा जो फुकतान है ना वो इथिक्स का है, बिल्कुल जो ठीक हमें है। देखने में मिलता है। थैंक यू सो मच सबा फॉर योर टाइम। इट्स अ वंडरफुल डिस्कशन विद यू। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस पॉडकास्ट को एंजॉय किया होगा। स्टे ट्यून फॉर द मोर एपिसोड्स। थैंक यू एंड अस्सलाम वालेकुम।